हाँ, गुड मॉर्निंग। सर आज मैं ऑफलाइन नहीं आ पाया। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि आज मैं ऑफलाइन नहीं आ पाया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं हुई। वैसे भी बड़ा मौसम वैसा हो रहा है, कोहरा हो रहा है, बाहर आने में दिक्कत होगी। The degrees of freedom of a dynamical system are defined as the total number of coordinates are defined as the total number are defined as the total number of coordinates or independent coordinates or independent quantities coordinates or independent quantities required to describe completely required required to describe completely required to describe completely the position and configuration completely the position and configuration के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे arrangement of constituent atoms in space arrangement of constituent atoms in space of the system of the system. It may also be defined as it may also be it matlab the degrees of freedom. It may also be defined as the total number of independent ways the total number of independent ways in which the particles of the system in which the particles of the system in which the particles of the system can absorb energy can absorb energy. ठीक है, देखिएगा the degrees of freedom of a dynamical system वो वाला सिस्टम होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं. The degrees of freedom of a dynamical system are defined as the total number of coordinates or independent quantities. Total number of coordinates और independent quantities. Coordinates का मतलब क्या होता है? ये x coordinate, y coordinates और z coordinates. तो ये independent quantities ही होती हैं. भाई x का y से कोई लेना देना नहीं और y का z से कोई लेना देना नहीं, z का x से कुछ लेना देना नहीं, तो independent quantities या coordinates बोलते हैं. It will be defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. उसकी position और configuration मतलब
कि वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पर अरेंज्ड है। उनको डिफाइन करने का एक तरीका होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक। दूसरा तरीका एक और होता है इसको डिफाइन करने का, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। इट में आल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो किस किस तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको भी हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही बोलते हैं। ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो ये है कि जहां पर टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें डिस्क्राइब करें तो वो जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ही कहलाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कि किस किस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है। तो यहाँ से हम ये कहते हैं, जैसे चाहे मैं इस डेफिनेशन की बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, चाहे मैं इसकी बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज अ क्वांटिटी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है। इस तरीके की होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलिए जी, अब आगे नोट करते हैं इसमें। इसमें हम लिखते हैं कि जनरली वी कैन से दैट generally we can say that we can say that the number of degrees of freedom of a system, generally we can say that the number of generally we can say that the number of degrees of freedom of a system is equal to the of a system of a system is equal to the total number of coordinates required is equal to the total number of coordinates total number of coordinates required total number of coordinates required to specify the positions of the constituent particles to specify the positions of the constituent particles positions of the constituent particles of the system of the system minus 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 the number of independent relations existing between the particles, minus the number of relations existing between the particles. अब इसमें हम लिखेंगे if n is equal to
number of particles if n is equal to number of particles in the system, number of particles in the system, and k is equal to number of relations existing between particles, then f is equal to 3n minus k. f होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नोटेशन होता है स्मॉल f, f इज इक्वल टू 3n माइनस k। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम किसी एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में हमने बार बार यहाँ पर बोला, पहले में भी हमने देखा कि the degrees of freedom of a dynamical system are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system। कोई भी पार्टिकल है कहां पर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स का पता होना जरूरी है। तीनों कोऑर्डिनेट्स यानी कि x, y और z। तो जब हमने ये बोला कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कैपिटल n है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब डायरेक्शंस तीन है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तीनों डायरेक्शन में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब तीन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो एक n x के लिए, एक n y के लिए और एक n z के लिए, तो इस वजह से 3n मतलब तीनों तीन डायरेक्शंस हैं, इस वजह से मतलब थ्री थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, इस वजह से 3n कर दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कैपिटल n है, लेकिन हम सिस्टम को अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर चलेंगे, सिस्टम के तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर चलेंगे, तो फिर वो 3n हो जाएगा, बिकॉज इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3n। तो एक में कैपिटल n है तो तीनों में 3n हो जाएगा। माइनस के नंबर ऑफ रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब मुझे अगर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन का मतलब कोलिजन जो हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैंने ये 3n की बात करी, तो इस 3n में क्या होगा, इसमें जो आपस में टकराव हो रहा है x का y के साथ, y का y वाले का z वाले के साथ और z वाले का x वाले के साथ, उसमें वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 3n में से k को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और इसकी जो है ना यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज इट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है, तो इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। अब इसमें हम नोट करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसी में दो तीन चीजें हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी। हम ये कहेंगे a rigid body can have both translatory and rotatory motions। ट्रांसलेटरी मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन और रोटेटरी मतलब जो घूमने वाला मोशन होता है। A rigid body can have both translatory as well as rotatory motions। Just like translatory motion
just like translatory motion, the rotatory motion can also be resolved into three components. Can also be resolved into three components. तो ये होता क्या है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर ट्रांसलेटरी मोशन को हम तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, इसी तरीके से रोटेटरी मोशन को भी तीन अलग अलग यानी कि एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि thus a rigid body has 6 degrees of freedom. Thus a rigid body has 6 degrees of freedom, comma 3 for translatory and 3 for rotatory motions. भाई 3 डिग्री यानी कि तीन कोऑर्डिनेट्स तो ट्रांसलेटरी के लिए हो जाएंगे और तीन कोऑर्डिनेट्स ही आपके रोटेटरी के लिए हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो मतलब बस ये काउंटिंग ही है कि कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं एक रिजिड बॉडी के मोशन के लिए। तो ट्रांसलेटरी यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही ट्रांसलेटरी मोशन बोल देते हैं। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसकी भी तीन डायरेक्शन है, और जो आपका रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन की भी तीन डायरेक्शंस हैं। ये तो हो गया रिजिड बॉडी के लिए। उसके बाद गैस के लिए भी देखते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। जैसे रिजिड बॉडी का था ऐसे ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम क्या कहेंगे, द मॉलिक्यूल्स of a monoatomic gas, the molecules of a monoatomic gas like helium, neon, argon, etc. मोनोएटॉमिक का मतलब जिसमें एटम एक ही हो, जिसके अंदर केवल एक ही एटम की बात करें। तो जब हम बात करते हैं ना, जैसे मान लो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, H2। हाइड्रोजन कभी भी किसी रिएक्शन में अकेले आपको H लिखे हुए नहीं मिलेगा। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, O2, नाइट्रोजन भी N2। लेकिन ये जो नोबल गैसेस होती है ना, ये नोबल गैसेस ये सिंगल एटॉमिक स्टेट यानी कि मोनो एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरीके से लिखा जाता है इनको। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस,
The molecules of monoatomic gas are capable of translatory motion only. Are capable of translatory motion only. और इसमें मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है, बिकॉज ये नोबल गैस है, नोबल गैस के केस में ये कहते हैं कि आपस में भी किसी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होता। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्स की में जा रहे हैं, या फिर वाई की में, या फिर जेड की में, लेकिन आपस में उनमें किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन, कोई टकराव नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन होगी, बस ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि एक्स वाई और जेड, तो केवल ट्रांसलेटरी है तो सिर्फ एक्स वाई और जेड यानी कि 3, एन की वैल्यू तो 3 हो गई, और के होता है नंबर ऑफ रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स, तो आपस में किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि के की वैल्यू जो है वो हो गई 0। देयरफॉर सॉरी, n इज इक्वल टू 1, वो 3 तो हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए आ ही जाता है, n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज इक्वल टू 3 into 1 माइनस k की वैल्यू हो गई 0, तो f हो गया हमारा 3, f हो गया 3। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डाई एटॉमिक गैस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डाई एटॉमिक गैस। बेटा ये वाला क्लियर है ना, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक का 3 कैसे है? यस सर। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें देखिएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डाइएटॉमिक गैस, द मॉलिक्यूल्स the molecules of a diatomic gas like diatomic gas like hydrogen, like hydrogen, oxygen, like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. The molecules of a diatomic gas like hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. consist of two atoms. Diatomic का मतलब क्या है कि हर एक गैस के अंदर दो एटम्स होंगे। Consists of two atoms. Consists of two atoms A and B of fixed distance apart. Of fixed distance apart मतलब अगर दो एटम्स हैं तो डाई एटमिक है तो मतलब दो एटम्स हैं ही। अगर दो एटम्स हैं तो हम ये कहते हैं कि दो एटम्स अगर हैं तो फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स डिस्टेंस होता है।
इसमें देखिएगा कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसलेटरी मोशन, अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन के केस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन के केस में तो हमारे पास साफ साफ है कि तीन डायरेक्शन होगी ही होगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेटरी मोशन, कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेटरी मोशन, corresponding to translatory motion, the molecules has 3 degrees of freedom. Has 3 degrees of freedom. नेक्स्ट देखेंगे इसी में कि corresponding to translatory motion, ट्रांसलेटरी मोशन में तो देखिए 3 डिग्रीज होंगी ही होंगी फ्रीडम की, ठीक है। वो ट्रांसलेटरी मोशन में 3 डिग्रीज होती हैं एक्स वाई और जेड, उसी के चलते मैंने यहाँ पर ये 3 इंक्लूड किया है, ठीक है। उसी की वजह से मैंने यहाँ पर ये 3 इंक्लूड किया है, ठीक। ट्रांसलेटरी मोशन में 3 डायरेक्शंस होती हैं यानी कि एक्स वाई और जेड, तो उसी की वजह से यहाँ पर भी हमने 3 इंक्लूड किया था। मोनो एटॉमिक एटॉमिक में केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है, लेकिन डाई एटॉमिक में ट्रांसलेटरी के साथ एडिशनल मोशन जो होता है रोटेशनल मोशन, वो नोट करेंगे। इसमें हम ये कहेंगे the molecule has 2 additional degrees of freedom due to rotational motion. The molecule has 2 additional degrees of freedom due to rotational motion. 2 additional degrees of freedom due to rotational motion. अब देखिएगा जब ये हमारे पास 2 एडिशनल कैसे होती हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये देखना है जरा मेरे को, अभी बताओ। molecule has 2 additional degrees of freedom due to rotational motion। इसमें हम ये कहते हैं कि जो 2 एडिशनल होते हैं ना रोटेशनल मोशन के लिए, तो ये ऐसे कहा जाएगा कि जैसे इसमें 2 ही एटम्स होते हैं। देखो जो हमारा सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक में तो रोटेशनल मोशन होता ही नहीं, मोनो एटॉमिक में रोटेशनल मोशन होता ही नहीं। लेकिन जब हम डाई एटॉमिक की बात करते हैं तो डाई एटॉमिक में जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन एडिशनल रोटेशनल मोशन भी होता है उसमें। तो वो जो रोटेशनल मोशन है वो किस तरीके से होगा, वो ऐसे होगा कि आप ये देखिएगा कि जैसे 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके वो रोटेट करना शुरू करेंगे। तो जब वो रोटेट करेंगे ना, तो वो रोटेट जो है वो किसी 2 डायरेक्शंस को ही इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब वो किस तरह से रोटेट करेंगे हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इधर x है, इधर y है, और इधर फ्रंट की साइड में z है, x y और z। तो अगर वो 2 एटम्स हैं, वो ऐसे जुड़े हुए हैं और वो 2 एटम्स रोटेट करेंगे, तो इस तरीके से मान लो वो रोटेट कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये x और y एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, इसमें z का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक। अच्छा, अब ये है कि जैसे ये इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते हुए ये z की डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये x की डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं और ये y की डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जैसे हम सोलर सिस्टम देखते हैं ना,
तो सोलर सिस्टम में हमने ये देखा था कि एक तो रोटेशन होता है, ठीक है, एक तो रोटेशन होता है कि वो सारे के जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। दूसरा दूसरा हम ये कहते हैं कि जो खुद की उनकी एक्सेस होती है, खुद की एक्सेस के अबाउट भी वो रिवॉल्व करते रहते हैं, गोल गोल घूमते हैं, अपनी एक्सेस के अबाउट भी घूमते हैं, ये चीज है। उसी तरीके से हमने ये कहा कि इनका एक रोटेशनल मोशन तो इस तरीके से चलता ही है जिसमें दो डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। उन दो डायरेक्शंस के अलावा ये ऐसे 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 एक्स वाई में घूमते जा रहे हैं, घूमते घूमते, और ये आगे की तरफ भी आते जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसी तरीके से जेड की डायरेक्शन में आ सकते हैं, मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कि वो इस तरह से घूमते हुए वो आगे की तरफ फ्रीली आ सकते हैं। इस तरीके से घूमते हुए वो एक्स की डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस तरह से घूमते हुए वो वाई की डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन ने 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो इनको ऐसे दी कि ये दोनों मिलकर जो घूम रहे हैं वो एक्स और वाई एक्सिस में घूम सकते हैं, या वाई और जेड एक्सिस में घूम सकते हैं, या एक्स और जेड एक्सिस में, मतलब ऐसे घूम सकते हैं। तो दो एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो ये मिल गई, और उसके अलावा जो है, उसके अलावा जो तीन डायरेक्शन होती हैं एक्स वाई और जेड, वो तीन डायरेक्शन तो होती ही है, ठीक है। तो जब मैंने मोनो एटॉमिक की बात करी थी, तो मोनो एटॉमिक में क्योंकि हमारे पास एक ही एटम था, तो एक एटम जो था वो एक एटम एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, एक एटम एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, बट देयर आर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक, वो एक एटम में उसमें रोटेशनल मोशन होता ही नहीं है, तो वो रोटेट तो करेगा ही नहीं किसी भी डायरेक्शन। तो हम ये कहेंगे कि एक एटम एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3 है, तो 3 into 1 माइनस एक ही एटम है तो आपस में इंटरेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, तो इस वजह से 0 हो गया। ठीक, अब उसके बाद में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर दो एटम्स हैं, तो दो एटम्स का जो रिवॉल्यूशन है, जो रिवॉल्यूशन है वो रिवॉल्व मतलब रोटेशन जो है, सॉरी, वो रोटेशन दो डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो जब वो दो डायरेक्शन में जा सकता है, उसके अलावा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, कोऑर्डिनेट्स तो केवल 3 ही हैं, एक्स वाई और जेड। तो इस वजह से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 into 1 करा था, तो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू, n की वैल्यू जो यहाँ पर है, n की वैल्यू 2 हो गई। और जब हमारे पास यहाँ पर डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस यानी कि उसके अंदर दो एटम्स हैं, एक एटम है ए, एक एटम है बी। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों आपस में भी टकरा सकते हैं, तो दोनों में रिलेशन कितना हो गया, ए होता है ना नंबर ऑफ रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स, तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, तो जो दोनों जुड़ेंगे, दोनों टकराएंगे या दोनों रिपल करेंगे, तो वो जो रिलेशन है वो कितना है, वो ए ही तो है, वो वन ही तो है। भाई ए और बी के बीच में रिलेशन बोल दो या बी और ए के बीच में रिलेशन बोल दो, तो वो एक ही तो रिलेशन है। तो इसका मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इन दिस केस जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, f इज इक्वल टू 3m माइनस k, तो f इज इक्वल टू 3 into 2 माइनस 1, यानी कि f इज इक्वल टू 5 हो गया। बताइए जी, क्लियर है सभी को, f की वैल्यू 5 क्लियर है? Yes, sir. बताइए बेटा, बाकी बच्चों को क्लियर है, समक्ष, कनिष्का, आर्यन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब इसी में मैं ये देखता हूं कि एक तीसरा टाइप और है। तीसरा टाइप है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक गैस में देखते हैं क्या है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक गैस में हम ये कहते हैं कि जो ट्राई एटॉमिक गैस होते हैं, ट्राई एटॉमिक गैस जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं।
एक तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो दोनों के अलग अलग केसेस देखेंगे। ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ट्राइएटॉमिक gas molecules are triatomic gas molecules are of triatomic gas molecules are of two types. Triatomic gas molecules are of two types. सबसे पहला है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल और फिर दूसरा हम देखेंगे लीनियर मॉलिक्यूल। पहला है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल in a non-linear molecule of a in a non-linear molecule of a triatomic gas like H2O, like H2O, SO2, etc. In a non-linear molecule of a triatomic gas like H2O, SO2, etc., the three atoms are located at the vertices of a triangle. The three atoms, by triatomic का मतलब तीन एटम है उसमें. The three atoms are located at the vertices of a triangle as shown. Vertices of a triangle as shown. इसमें हम ये कहेंगे the molecules has 3 degrees of freedom. The molecules has 3 degrees of freedom. Has 3 degrees of freedom due to translatory motion, and 3 degrees of freedom due to rotatory motion. Due to rotatory motion. And it is clear from the figure that number of relations between particles is equal to वो भी 3 है. कैसे? मान लो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की बात करेंगे तो एक रिलेशन इनके बीच में
इसकी और इसकी बात करेंगे तो एक रिलेशन इसके बीच में, और इसकी और इसकी बात करेंगे तो एक रिलेशन इसके बीच में। इसके अलावा और कोई नंबर ऑफ रिलेशन नहीं है। तो नंबर ऑफ रिलेशन टोटल 3 हो गए। 3 डिग्रीज जो है वो तो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होती ही है। इसी वजह से ये जो फैक्टर है 3 ये इंक्लूड करा गया है। ठीक है। और 3 डिग्रीज जो है वो यहाँ पर रोटेटरी मोशन की है। 3 डिग्रीज रोटेटरी मोशन की है क्योंकि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हमने ये कहा है कि 3 जो डिग्रीज हैं वो हमारी रोटेशनल मोशन की हो गई। तो n की वैल्यू वो भी 3, और ये तो 3 रोटेशन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये 3 फैक्टर तो इंक्लूड करा ही गया है। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 ये कर दिया जाएगा, तो ये हमारे पास ओवरऑल 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर therefore F is equal to 3n minus k, मतलब F is equal to 3 into 3 minus 3। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हो गई हमारी 6। ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 6 हो गई। ये केस कौन सा था? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल की। तो सेकंड है इन अ linear molecule such as CO2, such as CO2, HCl, etc. The 3 atoms are arranged. The 3 atoms are arranged in a linear manner. Are arranged in a linear manner as shown. यहाँ पर 3 एटम इस तरह से अरेंज करे जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब along a straight line. Therefore, here m तो 3 ही होगा क्योंकि 3 एटम्स हैं, तो 3 डिग्रीज हो गई रोटेशनल मोशन की। ठीक है। और ये 3 फैक्टर इंक्लूड होगा ही होगा जो ट्रांसलेटरी मोशन का होता है। लेकिन जो k है यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन वो ऐसा हो जाएगा कि पहले और दूसरे के बीच में है और दूसरे और तीसरे के बीच में है, यानी कि k की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप ये कहें पहले और तीसरे के बीच में, तो पहले और तीसरे के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जो हमें k देखना होता है वो नंबर ऑफ रिलेशंस यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्ट रिलेशंस देखना होता है। तो यहाँ पर f कितना हो जाएगा? f is equal to 3n minus k। तो f हो जाएगा 3 into 3 minus 2। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 7। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो गई। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बताइए सभी को। यस सर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो हो तो इसको भी करें और नहीं तो शाम को करवाता हूँ इसको, देख लीजिए जैसा आप कहेंगे।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा ही है। सर करा दीजिए। कराई दो ना, इसको करा देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ अलग से दे रखा है, इस वजह से करा रहे हैं, नहीं तो इसका थोड़ा सा हिंट जो है वो कल जो हमने डेरिवेशन करी थी ना, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वाली, तो उस वाली डेरिवेशन में भी इसका हमने यूज करा था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन मतलब इक्वल पार्टीशन, बराबर बराबर जो पार्टीशन कर दिया जाता है, जो डिवीजन कर दिया जाता है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में नोट करेंगे आप कि इट स्टेट्स दैट इन एनी डायनामिकल सिस्टम, ये जो इनकी डेफिनेशंस है ना, ये डेफिनेशंस जो है वो अच्छे से लर्न करनी है, उसमें कोई ऐसा मत सोचना है कि आप बना कर लिख दो। He states that it states that in a it states that in a dynamical system in thermal equilibrium, in a dynamical system in thermal dynamical system in thermal equilibrium, the energy is equally distributed. The energy is equally the energy is equally distributed. The energy is equally distributed amongst its various degrees of freedom. Amongst its various degrees of freedom. Amongst its various degrees of freedom, and the energy associated with each degree of freedom, and the energy associated with each degree of freedom per molecule, each degree of freedom per molecule is half kBT, half kB into T, where
where KB is Boltzmann constant and capital T is absolute temperature. Absolute temperature of the system. Absolute temperature of the system. ठीक है? It states that in a dynamical system मतलब वही है ऐसा system जिसमें molecules जो है वो motion में रहते हैं. It states that in a dynamical system in thermal equilibrium का मतलब उसमें जो molecules हैं सब के सब same temperature पर, कोई ज़्यादा कोई कम पर नहीं, सब same temperature पर. In a dynamical system thermal equilibrium, the energy is equally distributed amongst its various degrees of freedom. जो energy है, वो उसकी जितनी भी degrees of freedom है, मतलब अलग-अलग directions में सब जगह energy बराबर-बराबर distributed होती है. ये नहीं कि कहीं energy ज़्यादा और किसी direction में energy कम, ऐसा नहीं होगा. सब जगह energy बराबर distributed होगी. ठीक है? And the energy associated with each degree of freedom और हर direction में जो energy होगी वो कितनी होगी हाफ केबीटी के बराबर होगी. तो जरा इस चीज को देखते हैं. ये वैसे हम कल देख चुके हैं पर अलग से इसको देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी of gases, the average translational. सर वीडियो ऑफ हो गई. हाँ जी एक मिनट. एक मिनट वेट करिए बस.